ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। बड़े प्यार नाल आप जी हाजूरी कीर्तनी जथे पासों गुरबाणी का रस भिन्ना कीर्तन सरवण कर रहे सो आओ चंद मिनटां वास्ते गुरु इतिहास के दर्शन करिए। बड़े प्यार नाल अदब नाल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं हाज़र नाज़र जान के सतगुरां दे चरनां च सीस झुकांदियां होयां गुर फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का प्रकाश धारन का पावन दिहाड़ा बड़े शरधा नाल और बड़े प्यार नाल सारे जगत अंदर मनाया जा रहा है। आप भी मना रहे हैं। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने अज दे शुभ दिहाड़े पटना साहिब जी की पावन धरती ते प्रकाश धारिया। पटना साहिब दी धरती नूं भाग लाया सतगुरु ने। तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भाव लयो। सतगुरु दे अपनी रसना तो उच्चारण किए हुए ये बोल जदों असीं पढ़दे हां तां मन विच एक ख्याल पैदा हुंदा है। कलगीधर पातशाह किसी भी अवतार ने, किसी भी संत ने, किसी भी पीर पैगंबर ने, किसी भी महापुरुष ने ऐसा नहीं किया कि अपने प्रगट होने का अस्थान दस्या होवे, शहर दस्या होवे, अपने प्रगट होने के बारे अपने जन्म की कथा लिखी होवे या अपने जन्म होने तो पहलां दा वो टिकाणा दस्या होवे, माहौल दस्या होवे, इतिहास दस्या होवे। ये पहली बारी दुनिया दे अंदर ये चमत्कार होया है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज दी इस महान देन नूं समझण दा यतन करांगे। जितने भी पीर पैगंबर होए ने, अवतार वली गौस होए ने, उन्हां दे जिहड़े अनुयायी ने उन्हां दे जन्म दे बारे कथावां उन्हां ने लिखियां। ग्रंथां दे अंदर लेख दिते, उस्ततियां भी लिखियां, महिमा भी लिखी, पर आपने किसी ने ये सच्चाई जाहिर नहीं की। पर साडे गुरु ने तो ये सच्चाई अपनी रसना दे राही बयान की है। सानू इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए है भी उन्होंने फिर कोई तब्दील नहीं कर सकता। जब दूसरा कोई किसी की कथा लिख रहा होवे, कहानी लिख रहा होवे, जीवनी लिख रहा होवे, उहदे फर्क हो सकता है, अपने ख्याल हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं। पूर्ण तत्त सच नहीं होता। पूर्ण तत्त सच वो होता है जो आप अपनी कथा लिखे। इस गल नूं समझना तो सतगुरु तो कह रहे ने तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे भव लयो। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज इत्थे एक चीज़ दर्शाना चाहते हैं कि जदों असी परमात्मा की बंदगी विच भगती विच
ਲਿਵਲੀਨ ਸਾਂ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਆਪ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵਿਛੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਤ ਨਾ ਭਾਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ। ਇਹ ਜਗਤ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵਲੀਨ ਸੀ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਸਾਂ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਪੰਥ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਇਸ ਲਈ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ, ਵੀ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿੰਸਿਆਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਰਕ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਮਨ ਕਾ ਜਾਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ,
वो बड़ी कमाल दी है। दो तखलस ने, तकिया कलाम ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज दे। सारा जीवन ये दो तकिया कलाम गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज अपने वास्ते वरतते रहे ने। दो तकिया कलाम कि एक, जे रब ने कोई बख्शिश की है, कोई वड्याई बख्शी है, मान बख्शिया है, ज्ञान बख्शिया है, सोझी बख्शी है, जो कुछ भी रब ने बख्शिश की है, तो सतगुरु कहते ने तो प्रसाद। ये तकिया कलाम है गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज का। तो प्रसाद, तुहाडी कृपा, हे प्रभु तुहाडी कृपा। तो जे किथे कामयाबी बख्शी है, सफलता प्राप्त हुई है, चाहे जंगां विच, चाहे युद्धां विच, चाहे किसी भी मुकाम ते, उदों वाहिगुरू जी की फतेह। ये तकिया कलाम गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज का। दो, वाहिगुरू जी की फतेह। जे खालसे की सिरजना की है, खालसा पंथ साजिया है, ते पंथ उसका नाम रख दिता राह है। वह पंथ कहते हैं रस्ते नूं, वो रस्ता है जिहड़ा सीधा अकाल पुरख वल जांदा है। तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने कहा खालसा कदे भी नहीं आख्या है मेरा खालसा है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने कदे भी ये नहीं आख्या मेरा खालसा है। वाहिगुरू जी का खालसा और वाहिगुरू जी की फतेह। ये तकिया कलाम गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने अपनी सारी जिंदगी वरते है। जितनी भी देन अकाल पुरख की प्राप्त हुई है, रजा दी मूरत बन के रहे ने। जो बोल कह रहे ने पूरे उतर रहे ने उन्होंने बोलों थे। मोको दास तवन का जानो, कहते रंचक मात्र भी एदे अंदर मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, ये सच है भी मैनू कदे रब ना कहना। इसलिए सानू अपनी कथा लिखनी पई कि जद भी कोई कथा लिखता है उन्होंने भगवान बना देंदा है। जिसने भी कथा लिखी है लिखारी ने रब बना देता है, भगवान बना देता है, परमात्मा बनाता है, ईश्वर बना देता है। कहते साड़ी भी कथा जे कोई होर लिखेगा ना तो लिखारी मैनू भी भगवान बना देगा, परमेश्वर बना देगा, ईश्वर बना देगा। लिखारी के अंदर ऐसी श्रद्धा बनाउंदी है। इसलिए महाराज कह रहे हैं अब मैं अपनी कथा बखानो, मैं अपनी कथा आप ही बख्यान कर देना। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधद जै विद मोय आनो। कहने तप साधना कर रहा सा मैं, इस विधि नाल उस अकाल पुरख ने मैनू आनो, मैनू लैके आंदा है इस जगत विच। तप साधत जै विद मोय आनो। ते फिर महाराज उस अस्थान के कुछ सबूत दसते ने। जो असी इस पंक्तियां पढ़ते हैं ना, साढ़े अंदर बड़े भुलेखे पैदा होंदे ने, समझ नहीं पाते असी दे अर्थ भाव नूं। वो स्थान दसते ने महाराज कित्थे सी तुसी, कित्थे तप साधना की। हेमकुंड पर्वत है जहां। हेम कहते बर्फ नूं, बर्फ का कुंड है और सारा पहाड़ पर्वत ढकिया हुआ बर्फ नाल। हेमकुंड पर्वत है जहां सपत सिरंग सोबत है तां। वो एको जगह है जिथों पहाड़ दियां 7 चोटियां कट्ठियां दिखाई देंदियां ने, बर्फ नाल टकियां हुई और शोभत होंदियां ने, सोहणियां लगदियां ने, सुंदर लगदियां ने। सपत सिरंग सोबत है तां। फिर अस्थान दे सबूत दिते ने। सपत सिरंग तह नाम कहावा, पंडराज जह जोग कमावा। जिथे पांडुआ ने योग साधना की सी, जब पांडुआ नूं जदों निकाला दिता गया, उस जगह ते पांडुआ ने रह के ते साधना की ते टिकाणा लंबे समय तक किया। उस जगह महाराज कह रहे ने सपत सिरंग है, उस थां ते बह के ऐसी तपस्या की है। फिर जगह का फिर सबूत देता है। पंडराज जह जोग कमावा, जिथे पंड राजा ने जोग कमाया है। फिर तै हम अधिक तपस्या साधी, बड़ी तपस्या की असी उथे।
कित्थे तपस्या की महाराज? कहते महाकाल कालका आराधी, जिथे कालका ने महाकाल की आराधना की सी। ते लोग जो पंक्ति में पढ़ते हैं कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कालका की आराधना की सी। अर्थ नूं समझण दे बजाए बेसमझी विच अर्थ नूं पढ़ना पैंदा, सीखना पैंदा, समझना पैंदा है। अंदाजे नाल अर्थ नहीं होंदे। महाराज तो सबूत दस रहे हैं, पिछली पंक्ति च भी दसिया है। सपत सिरंग तह नाम कहावा, पंड राज जह जोग कमावा। जिस जगह ते पंड राज ने योग साधना की थी, उस थां ते 7 पहाड़ दियां चोटियां सुभायमान ने। उसे जगह ते असी बहुत सारी तपस्या की थी। तय हम महाराज कह रहे तय हम अधिक तपस्या साधी। उसे जगह ते महाकाल कालका आराधी, कालका ने महाकाल की आराधना की थी। जिस जगह ते उस जगह ते असी तपस्या की है। इन पंक्तियों का मतलब ये है, ए विद करत तपस्या भयो, द्वैत एक रूप हो गयो। कहते इस ढंग नाल असीं अकाल पुरख की तपस्या की ते 2 तो 1 हो गए, एकाग्र हो गए, परमात्मा में लवलीन हो गए। द्वैत एक रूप होए गयो। इधरों साड़ी तपस्या चल रही सी ते उधरों साढ़े माता पिता वो अनेकों तरीकों नाल भगती कर रहे सन, बंदगी कर रहे सन, साधना कर रहे सन, तपस्या कर रहे सन। तात मात मुर अलख आराधा, बोबद जोग साधना साधा। क्यों? उन्होंने साधारण पुत्र नहीं चाहिए सी, पुत्र चाहिए सी दुष्ट दमन, पुत्र चाहिए सी जुल्म का नाश करने वाला, पुत्र चाहिए सी सच का मार्ग दिखाने वाला। बड़े लंबे समय तक उड़ीक की, बड़ा लंबा समा हो गया। हुण देखो गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज का प्रकाश तो 1621 होया है। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज का विआह 1634 होया है। 33-34 विच गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज के घर संतान कदों हुई है? 1666 विच। कितने साल हो गए? तो अज पुत्र का विआह करिए ना, धी का या पुत्र का विआह करिए, साल 2 साल विच बालक ना आवे तो माँ प्यो नूं चिंता लग जाती। सबर कर लैणगे 3 साल 4 साल 5 साल, तो 5 साल तो बाद उम्मीद टुटनी शुरू हो जाती। तो 34 विच विआह होया माता गुजर कौर जी का, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज का। तो 1666 विच जाके गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज का प्रकाश होता है। कितने साल हो गए? इन्हें लंबे समय तक तपस्या साधना भगती बंदगी। कहते ने 26 साल 9 महीने 13 दिन तो उत्थे बाबा बकाले एक स्थान पर रह के भगती की गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ते माता गुजर कौर जी ने। बाबा बकाला वो पावन स्थान बनया है। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज का ससुराल घर है, माता गुजर कौर जी का पेका घर है वो पुरातन। तो उत्थे रह के भगती की बंदगी की। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की माता जी भी नाल हन, माता नानकी जी भी उत्थे भगती की बंदगी की लंबे समय तक। तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज कहे इधरों असी तपस्या कर रहे सा। तात मात मुर अलख आराधा, तात मात यानी कि माता पिता, मुर यानी कि मेरे, अलख यानी कि अकाल पुरख, अलख जड़ा दिखाई नहीं देता, आराधा उसकी आराधना की। बोबद जोग साधना साधा, बहुत जुगतियां दे नाल जोग लई साधना की। जोग का मतलब होता मिलाप, जोग का अर्थ होता मिलाप। मिलाप वास्ते अनेकों तरीके नाल साधना की साढ़े माता पिता ने। तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरदेवा। जदों उस अलख की सेवा की, परमात्मा की भगती की, परमात्मा प्रसन्न हो गया। कहते जो परमात्मा प्रसन्न हो गया, ताते भय प्रसन्न गुरदेवा। तिन प्रभ जब
आयस मोए दिया, ਤਾਂ उस प्रभु ने परमात्मा ने मैनू आयस दिता, जगत विच आने लई हुक्म दिता, आग्या कीती, तब हम जन्म कलू में लिया। ਤਾਂ ਅਸੀਂ जन्म कलयुग दे अंदर धारण किया। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अपनी कथा विच इंज लिखते ने, कहते ने उस अकाल पुरख दे अगे असी बड़े तरले लेते, क्योंकि असी आउंदे तां नहीं सी, आना चाहते तो नहीं सी, पर अकाल पुरख नूं असी बड़ियां बेनतियां कीतियां, महाराज उत्थे जाके बहुत कुछ मैनू देखना पैना है, तो तुसी मैनू इत्थे ही, मैं ठीक हाँ इत्थे ही रहन दिओ। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहने, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचर करबे को साजा। अकाल पुरख जी कहते मैं अपना पुत्र बना के तेनों भेज रहा जगत ते, तू साडा पुत्र जा बन के जाएगा उत्थे, और उत्थे पंथ की सिरजना करेगा, राह चलाएगा नवा जड़ा सीधा साडे कोल आंदा है। कहते ने मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचर करबे को साजा। कहते ने उत्थे जाके तुसी दुनिया के लोगों को सच दे मार्ग ते तोरो। तो फिर कलगीधर पातशाह कहते फिर असीं बेनती की भी महाराज ये कला ये काम तो मैं नहीं कर सकांगा। दोहरा ठंड भयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जय तह भय सहाय। कि जे तुसी सहायता करो कदम कदम ते, ये पंथ तां चल सकता है, ये मार्ग तां चल सकता है, नवा राह बनना है। कहते तां कामयाबी प्राप्त हो सकती है। तो उस पारब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु ने बचन किया कि जिथे तुसी वरतोगे असी वरतांगे, और तुहाडे बचनां विच वरतांगे, तुहाडे हर विचार विच वरतांगे, हर समय तुहाडे नाल वरतांगे। पर गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने फिर उस अकाल पुरख का तकिया कलाम जो अपना इस्तेमाल किया, तां गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज कह रहे हैं कि तो प्रसाद जो कम हो गया तुहाडी कृपा, जो कुछ प्राप्त होया तुहाडी कृपा नाल होया, जो काम मैं किया तुहाडी कृपा नाल किया, बाणी की रचना की तुहाडी कृपा नाल की। ऊपर लिखा तो प्रसाद सवैये, सराउग शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो घर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधक संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखे तो प्राणपति के। तो प्रसाद ते जे खालसे की सिरजना की ते वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, फतेह वाहिगुरु जी की और कृपा वाहिगुरु जी की। ये दो तकिया कलाम लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सारी जिंदगी चले ने। मैं फिर एक बेनती कर दिया साध संगत के चरणों में, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने पहली पौड़ी का उच्चारण किया है जो खालसा पंथ की अरदास बनी है। असी जिथों अरदास शुरू करते हैं ना, उत्थे सब तो पहले लिखा है श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती वार श्री भगवती, पहला लिखा वार श्री भगवती जी की वार। प्रथम भगवती सिमर के, प्रथम कहते ने श्रेष्ठ नू, सब तो श्रेष्ठ सब तो चंगी की भगवती। हुण इत्थे भगवती दे और भगवती दे और भगवती दे उच्चारण तीन किस्म के ने। जब उच्चारण किया जाता है को, लेकिन अर्थ ये अलग अलग ने तिना दे। बब्बा गग्गा, गग्गे नू कनौड़ा, तत्ता ते तत्ते नू सियारी, ये भगवती खड़ग नू कहंदे ने, ये भगवती तलवार नू कहंदे ने, ये भगवती किरपान नू कहंदे ने, अस किरपान नू कहंदे ने, खड़ग किरपान नू कहंदे ने। सतगुरु पातशाह ने आख्या नमस्कार है खड़ग को, दोहरा उच्चारण किया गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने। खड़ग नू शस्त्र नू सतगुरु ने सजदा किया है, नमस्कार की है कि सब तो पहला शक्ति ईश्वर की जड़ी है खड़ग के रूप में प्रगट हुई है, खंडे के रूप में प्रगट हुई है। शस्त्रों नू नमस्कार की है गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने। ए शस्त्र रूपी शक्ति दे नाल
ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ श्रेष्ठ प्रथम, ये भगवती प्रथम क्यों है? फिर दूसरा उच्चारण है फब्बा, गग्गा, ऊड़ा, तत्ता, तत्ते नूं सियारी भगवती। हुण इस भगवती का मतलब है बरशी। ते उस तो बाद तीसरा उच्चारण है भगवती, बब्बा, गग्गा, वव्वा, तत्ता, तत्ते नूं सियारी भगवती। ਇਹਦਾ मतलब देवी। भगवती देवी नूं कहंदे ने, भगवती बरशी नूं कहंदे ने, भगवती तलवार नूं कहंदे ने, किरपान नूं कहंदे ने, खड़ग नूं कहंदे ने, शस्त्र नूं कहंदे ने। जिवें श्री निशान, असीं निशान साहब दे मत्था टेकदे आ, किस नूं मत्था टेकदे आ? खंडा साहब नूं। उपर खंडा साहब लगे है, शस्त्र है, ईश्वर की शक्ति है, निरंकार की शक्ति है। प्रथम फिर क्यों क्या है इसनूं? प्रथम इसनूं इस करके क्या है कि वो अच्छे लोहे की बनी हुई है? नहीं। अच्छे डिजाइन नाल बनी हुई है? नहीं। इसनूं प्रथम भगवती क्यों क्या महाराज ने? महाराज ने आख्या ये प्रथम भगवती श्रेष्ठ भगवती है, ये श्रेष्ठ तलवार है। श्रेष्ठ तलवार किसनूं कहंदे ने महाराज? कहंदे ने ये गऊ गरीब की रखिया करने वास्ते है, ये मजलूमां की रखिया करने वास्ते है, ये दुष्टां नूं सजा देण वास्ते है। ये किसी गरीब का गला नहीं कटदी, किसी मजलूम का गला नहीं कटदी, ये मजलूम की रखिया वास्ते उठदी है, ये गऊ गरीब की रक्षा वास्ते उठदी है, ये लोड़वंदां की रक्षा वास्ते, कमजोरां की रक्षा वास्ते उठदी है, दीन की रक्षा वास्ते उठदी है, धर्म की रक्षा वास्ते उठदी है। जद भी उठी है धर्म की रक्षा वास्ते उठी है, जद भी उठती है जुल्म नूं मिटाण वास्ते उठती है। इसलिए प्रथम है, इसलिए प्रथम है। इन प्रथम का मतलब यह है, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए। इथों अरदास की पौड़ी आरंभ होती है, फिर 10 पातशाहियां नूं सजदा है और अखीर विच आखिया तेग बहादुर सिमरे आए, घर नौनिद आवे ताए, सब थाई होए सहाय। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज की देन बड़ी महान है। खालसा पंथ की सिरजना, अमृत की दात, पंजबाणियां का नितनेम और अकाल पुरख की भगती करने वास्ते अकाल उस्ताद दीयां बाणियां गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज की सब तो वड्डी देन है। और सब तो वड्डी देन इस देश वास्ते है कि मुगलिया सल्तनत की जड़ उखेड़ देनी, जो दुनिया से कम कोई भी नहीं कर सकता सी। इन्ने वड्डे वड्डे 22 धार दे राजे, वड्डे वड्डे राजे रजवाड़े जितने जगत के अंदर सी, वो सब मुगलों के तलवे चट बन चुके सी। और मुगल अपना जोर वधाई जाते सी, जुल्म मचाई जाते सी। इस संसार के अंदर बहु बेटी की कोई इज्जत पत नहीं रह गई। मुगलों ने जुल्म वधाया हुआ, उन्होंने सामने कोई बोल नहीं सी सकता। इत्थे फिर प्रथम भगवती चली, गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने फिर तलवार चुकी और ऐसी तलवार चुकी, मुगलिया सल्तनत नूं जड़ तो मिटाया गुरु गोबिंद सिंह ने, अपने देश तो कढ़िया गुरु गोबिंद सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज अगर मुगलिया हुकूमत नूं ना खत्म कर दे, उहदी जड़ ना उखेड़ दे, तो दुनिया की कोई भी हस्ती उन्होंने कढ़ नहीं सी सकती। ते अज जिहड़ा सुख का साह लै रहे हैं बदौलते गुरु गोबिंद सिंह साहब की भगवती चलन नाल, खड़ग चलन नाल, तलवार चलन दे नाल ये गौ गरीब की रखिया हुई है, मजलूमां की रखिया हुई है। अस सुख दे साह लै रहे हैं, रब नूं याद कर रहे हैं। तो जितनी भी गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज की तारीफ की जाए घट है। गुरु गोबिंद सिंह साहब देखो, गुरु ने अपने सिख की नींव इतनी मजबूत कर दी है। कहते ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सतगुरु की बाणी, अज जो मुख वाक आया ना, हुण जो अखंड पाठ साहब का भोग पिया तो वाक आया, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै। गजब है गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज, जे साडियां जड़ां मजबूत ना कीतियां हुंदियां असीं तां हिल जांदे। कल छोटे साहिबजादियां दी शहीदी हुई है, अज साहिबजादियां दा संस्कार हो रहा है।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ। ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਟੱਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो कवि कहते इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी नहीं है। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखे सतगुरु के वसफ का ताबे रकम है। एक आंख से बुलबुला कुल बाहर को देखे, साहल या मझधार या किसी लहर को देखे। कविता अपने ढंग नाल बहुत सोहना लिखते ने। तो ऐसे गुर को बलबल जाइए, आप मुकत मोह तारे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज की सिक्ख्यावां नूं जीवन धारण करिए। गुरु की देन है बाणी, नितनेम, उसनूं जीवन धारण करिए। गुरु की बख्शिश है, अमृत की दात, उसनूं प्राप्त करके गुरु वाले बन के गुरु के परिवार में शामिल होइए। जो कि गुरु ने साडे लिए अरदास की थी, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। साड़ी भी उहदे विच हाज़री लग जाए। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज के प्रकाश तारन की बहुत बहुत बधाइयां सारियां संगतां नूं। अनेक सेवा प्रवान करना नहीं भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।